Good morning, dear listeners. Dear listeners, today we will revise chapter 9 direction. And in this chapter, we read there are four cardinal directions north, east, west, and south. North and south points toward the north and south pole. A compass is an instrument that shows direction. The needle of a compass always points to the north, and from that we can locate other directions. There are four intermediate and intermediary directions northeast, southwest, southeast, northwest. In the earlier time, when there was no compass, man followed landmark to reach his destination. Landmarks are used even now to reach a place and direct others. A sketch gives us a rough idea of a place and help in locating a place. A map gives us a exact location of the place. It is drawn to scale. It gives us location of a place on a flat surface. It is very important to learn to read a map by understanding the language of a map. Map uses the same language all over the world so that everyone can read any map anywhere. Do you know there are different type of maps? Road maps, climate maps, political map, physical map, and thematical map. What is a scale? Scale is used to represent the ratio between distance on map and the distance on the ground. Symbol. A symbol represents real object. It may be in the form of simple drawing, letter or a shape. Similar symbols are used all over the world. Color. The color indicate different features on a map. For example, the blue color indicate water. So dear student, here I have explained the main point of this chapter. Now I will explain exercise of this lesson, which is given on page number 76. Tick the correct option. First question is, a scale give us a, स्केल हमें क्या देता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, a rough idea. A scale give us a rough idea. Number 2, a map gives us a true location on a flat surface. तो मैप हमें ट्रू लोकेशन किस पे बताता है? फ्लैट सरफेस के ऊपर. नंबर 3 इज ब्लू कलर ऑन अ मैप इंडिकेट्स. ब्लू कलर मैप पे हमें क्या किसके बारे में बताता है? वाटर के बारे में. 4th इज हैंड ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू. कंपास के ऊपर जो हैंड होता है वो किस तरफ होता है? हमेशा नॉर्थ साइड होता है. So, dear student, now I will explain exercise B. Fill in the blanks. Question. First fill up is, there are dash cardinal points. Right answer is 4. There are 4 cardinal points. Number 2, people generally follow dash when they have to reach a place. तो जनरली जो लोग क्या यूज़ करते हैं अगर कहीं जाना हो तो? लैंडमार्क. तो राइट आंसर क्या है? लैंडमार्क. नेक्स्ट इज द हैंड ऑफ अ डैश ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ. तो हैंड ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ. नेक्स्ट इज fourth one, in between the 4 cardinal direction there are 4 intermediary directions. आंसर क्या है? डायरेक्शंस. ओके, जो 4 कार्डिनल डायरेक्शन होता है उनके बीच में क्या होते हैं? 4 इंटरमीडियरी डायरेक्शंस होते हैं. नेक्स्ट इज, it is important to learn the dash of a map. It is important to learn language of a map. So dear student, here I have discussed exercise B. Now I will take the next exercise.
Answer the following questions. Question number 1. When you face the rising sun, which direction is to your right and to left? So जब राइजिंग सन होता है, ठीक है, तो उस समय जो है आपका फेस किस तरफ होगा, ठीक है, इस राइट और लेफ्ट साइड आपको बताना है. तो आपके राइट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड. टू राइट साउथ एंड टू लेफ्ट नॉर्थ, ये डायरेक्शंस होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप एंड डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. सो एज आई एक्सप्लेन यू, क्या होता है स्केल. A scale is used to represent the ratio between distance on map and distance on the ground. Next is question number 3. What is a book of maps called? जो बुक होती है मैप की, उसे हम क्या बोलते हैं, एटलस. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की दी है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू सिंबल रिप्रेजेंट ऑन अ मैप? तो सिंबल हैं वो मैप पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंड द आंसर इज रियल ऑब्जेक्ट्स. रियल ऑब्जेक्ट शो करेंगे सिंबल्स मैप के ऊपर. नाउ लास्ट तो आप ड्रॉ रोड साइन डेट शो नो हॉर्न, वो आपको पिक्चर बनानी थी. नाउ आई विल डिस्कस exercise D. Answer the following questions. Question number 1. What is the importance of a sketch? तो जो स्केच है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? आंसर है a sketch give us a rough idea of a place. जो स्केच है वो हमें रफ आइडिया देता है, किसी जगह के बारे में हमें बताता है, ठीक है. इट गाइड्स अस विद वर्ड्स लाइक left, right, front, back, and give some landmark like a road, church, hospital, etc. तो हमें गाइड करता है कैसे. जो वर्ड्स होंगे इसमें क्या होगा, लेफ्ट राइट बताएगा कहाँ पर है, फ्रंट और बैक कहाँ पर है, एंड गिव सम लैंडमार्क लाइक, और हमें जो है लैंडमार्क के बारे में बताता है कि कहाँ पर क्या है, रोड कहाँ पर है, चर्च कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ स्केल? सो जो एक मैप है और उस स्केल के बीच में क्या डिफरेंस है? द आंसर इज मैप एंड स्केल. मैप इट गिव अस एन एग्जैक्ट लोकेशन. जो मैप हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है. इट गिव अस अ रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस. तो ये रफ आइडिया देता है एक जगह के बारे में. नंबर 2. इट इज़ ड्रॉन टू स्केल. ठीक है, कैसे होता है, स्केल पे ड्रॉन होता है. इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल. और ये जो है स्केल पे ड्रॉन नहीं होता है, ठीक है, स्केच की बात कर रहे हैं. मैप नंबर 3. इट गिव्स अस द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो ये हमें जो है लोकेशन बताता है किसके ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर. इट हेल्प इन लोकेटिंग अ प्लेस. और ये हमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन लोकेटिंग अ प्लेस, हमें प्लेस ढूंढने में हेल्प करता है स्केच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 4 प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस इफ़ यू डू नॉट नो डायरेक्शन. आपको 4 प्रॉब्लम्स बतानी है. अगर आपको डायरेक्शंस की नॉलेज नहीं है तो क्या हो सकता है. द 4 प्रॉब्लम दैट वी कैन फेस इफ़ वी डू नॉट नो डायरेक्शंस आर. वो कौन कौन सी है जो अगर हमें नहीं पता है डायरेक्शंस के बारे में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है. नंबर 1, वी कैन नॉट फाइंड द वे अराउंड आर लोकेलिटी. तो अपनी लोकेलिटी में जो है जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वहाँ पर रहते हैं हम. नंबर 2, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय अदर. अगर हमें कोई और डायरेक्शन देगा कि आपको राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, अगर हमें डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होगा तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि कहाँ जाना है. नेक्स्ट इज़ वी विल फेल टू रीड एंड गिव डायरेक्शन. हम फेल हो जाएंगे डायरेक्शन को जानने में और किसी को बताने के लिए आपको कहाँ आना है, ठीक है. नेक्स्ट वन, वी कैन नॉट रीच आवर डेस्टिनेशन. तो हम नहीं पहुँच सकते जहाँ पर हमें पहुँचना होगा, जिस प्लेस पे हमें जाना होगा वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे अगर हमें डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 4,
What do you understand by the language of a map? तो आप क्या समझते हो लैंग्वेज ऑफ मैप के बारे में? Why it is important to use मैप सिंबल ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो इम्पोर्टेंट क्यों है? जो सिम्बल्स लिए जाते हैं मैप के ऊपर वो सेम ही क्यों होते हैं पूरे वर्ल्ड में? एंड द आंसर इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय मैप इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप. जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है मैप के ऊपर उसे हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रीड अ मैप बाय अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें लर्न टू रीड अ मैप. अगर हमें मैप को रीड करना है और हमें समझना है तो हमें लैंग्वेज आनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन है इट इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज सम सेम मैप symbol all over the world. And the answer is it is important to use same map symbol all over the world so the everyone can read any map anywhere. तो सेम जो है मैप के पे जो सिंबल होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम इसलिए होने चाहिए ताकि कोई भी कहीं जाए तो उसको आसानी से समझ सके या पढ़ सके. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू फाइंड डिफरेंट डायरेक्शंस इफ़ यू डू नॉट हैव अ कंपास? तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शंस को अगर आपके पास कंपास नहीं है? सन हेल्प अस टू लोकेट द डायरेक्शन इन सच अ सिचुएशन. ऐसे सिचुएशन में हमारी हेल्प कौन कर सकता है? सन कर सकता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. हमें पता है जैसे सन कब राइज होता है, कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से. फेस द राइजिंग सन, योर बैक साइड विल बी द वेस्ट. आपकी बैक साइड में क्या फेस करेंगे सन की तरफ? बैक साइड क्या होगा आपका? वेस्ट होगा. द डायरेक्शन टू योर राइट विल बी द साउथ. और राइट की तरफ आपका साउथ होगा. एंड द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ. तो डायरेक्शन लेफ्ट की साइड होगा वो कौन सा होगा? नॉर्थ होगा. हमें तो पता है कि सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से ऊपर लिखा हुआ भी है. डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. व्हाट विल यू डू? यू विल रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चन आंसर. और साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी है कि आप क्या करोगे, जो मैप स्किल उसकी प्रैक्टिस भी करोगे. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.